मेरे पास कुछ ना कुछ बहाना था, Lockdown. लॉकडाउन का बहाना था। Yeah, it's God's time and परमेश्वर का समय बड़ा है। yes, I'm really glad. My heart is filled with joy. और मेरे में आनंद है और परमेश्वर की खुशी है। Thank you for the great ministry. Thank you for Pastor Dilip's wife and family here बच्चे के लिए और बच्चे के लिए भी मैं शुक्रिया अदा and the team that is always और इनका जो टीम है उनको भी शुक्रिया देता हूँ। really love you congregation. You all are brothers and sisters. Amen. हम लोग सब भाई बहन लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं। So let's pray for the message. प्रार्थना करते हैं। Thank you, Father. We thank you. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं Lord, thank you set a day for us. और आज हमारे बीच में है That we could come together and और worship. हम आपके नाम पर आ सकते हैं और आपकी आराधना कर सकते हैं Lord, you have a way to minister to people. और आपके अद्भुत रास्ते के द्वारा हर एक से बात करना Yes, Lord, and we pray that you anoint your servant. और आप हमें अभिषेक करना Lord, help me as you are me to preach. And we pray, God, bless this portion. और In हम Jesus' प्रार्थना name. करते हैं इसको आप आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम So, good evening. I just want to talk on a topic about forgiveness. में। और मैं आज परमेश्वर की क्षमा के विषय में बात करना चाहता हूँ। And it's amazing that we think about the forgiveness which came from God. और हम लोग परमेश्वर का जो बात करते हैं उनके विषय में उनके द्वारा हमें क्षमा मिला है। We could have never discovered what is forgiveness. हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि क्षमा का मतलब क्या है। Since the sin came into this world, जिस समय दुनिया में पाप आया we know the first sin that was committed in the Garden of Eden. और ईडन के बागीचे में जब पहली बार पाप हुआ If you see, there was a great quarrel that happened between Adam and Eve. और वहाँ पर आदम और हवा के बीच में झगड़ा हुआ। Why? क्यों? Because sin entered, क्योंकि पाप आया and then our nature went against the goodness of God. हमारा जो स्वभाव परमेश्वर का जो अच्छाई है उसके विरुद्ध है। And even we know that immediately God demonstrated the type of forgiveness that He's going to give Adam and Eve. और परमेश्वर ने उसी वक्त एक क्षमा के विषय में एक ऐसा चीज दिया हमें और जो आदम और हवा को भी पाप से क्षमा पा सके। And that is by the sacrificing of the lamb. और वो मेमना का बलिदान की वजह से And He clothed Adam and Eve with the skin. और आदम और हवा को उन्हें ढका चमड़े से And then He sent them out to the earth. और फिर बाद में उनको आगे भेजा। So that's amazing, a great forgiveness of God to mankind. और वो परमेश्वर का महान क्षमा है हर एक दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए। Like you and me could, in my fallen nature, हमारे गिरे हुए स्वभाव से we could never define what is forgiveness. हम कभी क्षमा के विषय में कुछ बोल ही नहीं सकते। In a human definition, और जो हमारा जो कहना है उसके विषय से our thinking हम जो सोचते हैं उस विषय में about forgiveness, जो क्षमा के विषय में है। like somebody does to me something, कोई मेरे खिलाफ कुछ बात करता है, कुछ करता है the one who hurts me, और जो मुझे ठेस पहुंचाता है the one who injures me, और जो मुझे कुछ करता है। and then I have a nature that will want to take revenge. और मेरे में ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि उसके खिलाफ मैं जाऊँ। But there is also a good moral man लेकिन यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वभाव से अच्छा है। there is also a good moral people. मुझे अच्छे लोग भी रहते हैं अच्छे लोग भी हैं who wants to forgive, जो क्षमा करना चाहते हैं। but his forgive has a different term.
लेकिन उनका क्षमा और कुछ हिसाब से है। No, he will say, I forgive you, और वो बोल सकता है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, but in his mind, he will keep getting that every time he sees that person. और उनके मन में हमेशा वो जो व्यक्ति को देखता है वो वापस दोहराता है कि जो हुआ, Because he's not got a mind that is of God. क्योंकि उनके पास वो परमेश्वर का मन नहीं है। And it is so good, like, even one of the 7 saints on the cross, और यीशु मसीह का 7 में से एक जो कहना था क्रूस पर से, he said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करना, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। Like even before, in the beginning was the pattern of forgiveness. और पहले से ही परमेश्वर ने एक क्षमा करने का एक पैटर्न बना दिया था। And also in the closing time of his life, और उनके अंतिम समय में, and closing time of Christ's life, और यीशु मसीह का अंतिम समय जब सब कुछ बंद होने वाला था, at that time also he prayed to God the Father, और उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, God forgive them for they do not know what they are doing. और परमेश्वर उन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। But if a man or a woman, एक आदमी और औरत, today we have to just look to God for that forgiveness aspect. और हम सिर्फ परमेश्वर को देखते हैं, उस क्षमा के विषय में देखते हैं। I think the world could have been a very beautiful place, हो सकता है संसार बहुत अच्छे जगह होते हैं, but man is not able to do that. लेकिन आदमी आप उस वैसा कर नहीं सकते। Like today you see the war that is happening between Ukraine and Russia. रशिया और यूक्रेन के बीच में आज युद्ध चल रहा है, आप देख रहे हैं। I am not able to understand. Russia is so big. मुझे समझ में नहीं आता है कि रूस इतना बड़ा देश है, They have the power, उनके पास सब सामर्थ्य है, and Ukraine is just like 1/4 of Russia. और एक चौथाई रूस का छोटा सा देश है। The world is looking at them, right? और सब पूरे संसार के आपके लोग उनको देख रहे हैं। But what is the outcome? क्या People are उनका dying. क्या उनका ये होगा, रिजल्ट होगा? लोग मरते हैं और लोग मरे हैं उस वॉर में, और बहुत सारे की लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और अभी लोग मरे हैं और बहुत से प्रॉपर्टी यानी कि इमारत गिरे हैं। but Putin, I don't know, they don't have the attitude of forgiveness. जो राष्ट्रपति है उनके पास कोई ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो क्षमा करें। Now, but how does it relate with us, with our Christian? How does it relate to our Christian life? और ये किस प्रकार मेरे विश्वासी जीवन को किस प्रकार ये सब कुछ दोहराता है? How does today, can that happen to us? क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है? Yes or no? आया ना? It can. हो सकता है। Satan is very, very clever and crafty. और शैतान बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालाक। And one of the aim that he wants to attack Christians, और एक तरह से वो विश्वासी पे अटैक करता है। he wants to, from outside, put that influence of cultivating unforgiveness. और वो चाहता है कि हमारे जीवन में हम किसी को माफ न करें और ये हमारे जीवन में होता रहे। And it's good. We'll read one chapter of Matthew 18. It is so good. Peter, one of the apostles of Christ, मत्ती 18 में हम लोग पढ़ेंगे, पतरस जो एक परमेश्वर का प्रेरित था, he came up with this question. और उन्होंने यीशु मसीह से सवाल किया, Lord, if my brother sins against me, कि परमेश्वर अगर मेरा भाई को मेरे विरुद्ध कोई पाप करे, so how many times should I forgive him? कितना समय मैं उन्हें माफ करना चाहिए? Is only 7 times good enough? क्या 7 बार काफी है? Because after 7 I want to finish him off.
और 7 बार के बाद मैं उनके सब कुछ बंद कर दूंगा। And thanks to Peter, right? और पतरस का धन्यवाद हो, He brought that question up. और उन्होंने ये सवाल उठाया। Of course, it's the work of the Holy Spirit, और ये पवित्र आत्मा का काम है, and really to teach us और वो हमें सिखाता है how we can cultivate the attitude of forgiveness in our heart. किस प्रकार हम हमारे जीवन में क्षमा के विषय में हम लोग हमारे जीवन में उस क्षमा को धारण कर सकते So we just read that chapter, हम लोग उस अध्याय को पढ़ेंगे। and I request just the attention to that chapter. और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें ध्यान दें जो हम पढ़ते हैं। Verse 6. 21 से लेकर हम लोग 35 तक पढ़ते हैं। मैंने मैथ्यू 18 21 से 30 तक। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरे भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, और 24 में जब वह लेखा लेना लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया और 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 25 में जबकि चुकाने की उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और किसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। तो 20 में लिखा है, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। 27 में जब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर फर्ज में भर दे। 29 में लिखा है, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। 30 में उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। 31 में उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरी हाल बता दिया। 32 में तब उसके स्वामी ने उसको बोलकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया है। 33 में इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपनी संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। 34 में उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे तब तक के हाथ में रहे। 35 में इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है और तुम भी वैसा ही करेगा। Amazing, the beginning of the chapter of that where Peter comes, verse 21. तो जब आता है और 21 वचन में लिखा है, with the question, प्रश्न के द्वारा आता है, how much time should I forgive? कितने बार मैं क्षमा करना चाहिए? Jesus said 7 times 77. यीशु मसीह ने कहा कि 70 गुना 70, 7 गुना 70। We know the story as we read. हमने अभी सुना The one slave was forgiven by his master. और एक व्यक्ति ने अपने दास को माफ किया। And the second, when he came to his fellow slave owed him some money. और उसको माफ किया था, उसके एक दास थे, वो कर्जा था, उसने कर्जा था। He couldn't forgive him. लेकिन वो उसे माफ नहीं किया। So the master was angry. और जो बड़ा व्यक्ति था वो गुस्सा हुआ।
Master was angry और गुस्से में आया। because I forgive you. क्योंकि मैंने आपको माफ किया है, I showed you mercy. मैंने आपको करुणा दिखाया, You should have shown the same mercy and forgiveness to them. क्योंकि उसी तरह उसको माफ करना चाहिए था, करुणा दिखाना चाहिए था। And that is amazing. और ये अद्भुत बात है। So just think for a moment, और ये सोचिए कुछ क्षण के लिए, what will happen to a Christian when he has that unforgiveness spirit? क्या हो सकता है विश्वासी जब वो दूसरे को माफ नहीं करता? And Peter was to be, he's an apostle, he's going to be an apostle, पत्रस एक प्रेरित होगा, he's going to be used by God, परमेश्वर उसको उपयोग करेगा, but God was working with him परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर and रहा he है was showing him, और वो बता रहे थे no, you can't have that attitude of unforgiveness. और तुम्हारे जीवन में ये जो बिना माफ किए ऐसा नहीं होना चाहिए जो व्यवहार। And somebody said, like, it's so true, when you have unforgiveness, उसने कहा है कि जब हम दूसरे को माफ नहीं करते हैं, you yourself are in a prison. अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो हम ही बंदी बन जाते हैं। I don't think anybody was in prison in that. यहाँ पर कोई आदमी जेल गया, I visited prison. मैं जेल में Visited, मैं कैदी बनकर नहीं था। मैं ऐसा विजिट को जाता था। और वो कैदी इससे नहीं था, लेकिन वो जेल में जाकर विजिट करते थे, अच्छा थे। I seen the state of the jail, very dirty. मैंने बंदीगृह को देखा है, बहुत गंदे होते हैं। Inside, yeah, actually outside is not allowed. बाहर वाले को अंदर आने का कोई अनुमति नहीं है। But inside, if once you go, अंदर एक बार आप जाएंगे it is not a good, healthy place to stay in. और कोई अच्छा जगह नहीं है रहने की। That is what God is saying. Like, you come out of the prison. परमेश्वर यही बोलता है कि तुम उस बंदीगृह से बाहर आए। And what is the way to come out? इसका क्या रास्ता है कि हम बाहर आए? Forgive. हम क्षमा करें, Let it go. जाने दें। He says, pray to him, pray for him, हम उनके लिए प्रार्थना करें, do good to him, उनके लिए अच्छा करें। find a way to bless him. और हम कुछ ऐसे ढूंढते हैं कि हम उनको आशीष दें। That's the ministry. वो हमारा मिनिस्ट्री है, काम है। And that's the relationship that you are going to have with me. और वो उसी तरह परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होगा। Maybe you will find that is hard and loss. Maybe you will find it to be hard and loss. और हो सकता है आपको कठोर लगे या कुछ लॉस होगा है, हम लोग कुछ खोज सकते हैं ना, हमको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा और मैं ये रखना चाहता हूँ मेरे में ही और मैं उसे क्षमा नहीं करना चाहता हूँ। पर परमेश्वर के नज़रों में और परमेश्वर की इच्छा में वो जो रिश्ता है उसमें हम अभिषेक नहीं पाते और परमेश्वर वही चाहता है कि, और मैं एक दो तीन पॉइंट बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। क्या हो सकता है जब हम, अगर हम हमारे स्वभाव में हम किसी को क्षमा नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या क्या खो सकते हैं? ऐसा खोने में भी कुछ नहीं है, लेकिन हमारा गॉड का जो जीवन है हमारे लिए, और हम जो आनंद मना सकते हैं, गॉड का अनुग्रह हमेशा मेरे साथ है, उनका प्यार हमेशा हमारे साथ है, लेकिन कुछ चीज है जो आप लोग मतलब हो सकते हैं, जैसे कुछ रिवॉर्ड। तो मैं तीन चीज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर स्वयं वचन में कहा है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, मत्ती 6 में उन्होंने बताया कि प्रार्थना किस तरह से होता है, तो उसमें एक वचन उसी प्रार्थना में यीशु ने कहा है, जब आप प्रार्थना करते हो, हम लोग को प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उन्होंने उसमें एक ये डाला है कि जैसे आप लोग ये भी प्रार्थना करो कि आप एक दूसरे को क्षमा करो जैसा मैं क्षमा करता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जो परमेश्वर भी हमें ये बताना चाहता है
कि आपका प्रार्थना में वो रुकावट में आना चाहिए। मतलब मेरा जो हृदय है, मुझे हमेशा एक नम्रपन होना चाहिए, एक हृदय जो हमेशा मुझे क्षमा, जिसने मुझे चोट पहुंचाई, जो भी मुझे दर्द पहुंचाया, जो भी मुझे नुकसान पहुंचाए, जो नुकसान मैं कभी अंदाज भी नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन अगर वो चीज मेरे में है तो मेरा प्रार्थना गॉड सुनता है। लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य है कि हमारी प्रार्थना में मार्कुस 11 में यीशु ने कहा है कि जब भी आप खड़े होकर प्रार्थना करते हो, जब भी आप खड़े होकर प्रार्थना करते हो, अगर आपका भाई या किसी से आपसे क्षमा नहीं की तो मेरे पिता भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो आप जब भी खड़े हो पहले हमें क्षमा करना, राइट। सेकेंड, दूसरा ये है जब रहते हैं हमारे ये स्वभाव हमारे जो हम कभी क्षमा नहीं रख, कभी हम चलते हैं हमारे जीवन में, लेकिन एक अभिषेक हमारे जीवन में, वो अभिषेक, वो आनंद, वो पवित्र आत्मा का आनंद, कभी कभी हम उनको भी दर्द पहुंचाते हैं। वचन कहता है कि हम जब हमारे हृदय में हम क्षमा नहीं कर सकते, वो चोट पवित्र आत्मा और हमारे जो अभिषेक हमारे जीवन में, हमारे खानदान में होना चाहिए, हमारे हम जहाँ पे काम करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, अगर वहाँ पे भी आपके पास वो रौनक जो होना चाहिए, वो कभी कभी हम नहीं पाते। परमेश्वर चाहते हैं कि हमेशा, चाहे ऑफिस का स्टाफ भी क्यों, अभिषेक हमें खोना नहीं चाहिए। और आखिरी में हम सब एक दिन परमेश्वर के सामने रहेंगे, राइट। वचन कहते हैं कि हम सब एक दिन, ये नहीं कि डांटने के लिए नहीं, ये नहीं, वो तो सब परमेश्वर के हमारे उनकी क्षमा के द्वारा हमने क्षमा पाप हमारे पापों के लिए पा लिया। लेकिन अगर हम हमारे दिल में प्रेम रखते हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं, प्रेम के द्वारा, क्षमा के द्वारा, नम्रपन के द्वारा, तो हमारे में वो कॉन्फिडेंस आता है, हमारे में वो तो हम परमेश्वर के सामने, वो हमारे पास वो याव रहेगा कि हमारे प्रेम के वजह से हमें उधर डर नहीं महसूस होगा। क्यों? पहली बात, हमने हमारे दिल में हमेशा परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमने लोगों से प्रेम किया। परमेश्वर का क्षमा की जो शिक्षण मिला, उसके द्वारा हमने लोगों को क्षमा की, और इसी प्रेम की वजह से पहला यूहन्ना 3:4 में कहता है कि क्योंकि तुम्हारा प्रेम एकदम स्ट्रांग था और हमेशा वो उस चीज में बने रहे, इसलिए आपके पास वो मैं तो जस्ट थिंक मैं आज ये वी वांट, हमें वो चाहिए कि ना यीशु मसीह मरते वक्त भी लोगों को क्षमा की, और बुक ऑफ एक्ट्स में स्टीफन का जीवन, जब लोगों ने उसको पत्थर के द्वारा, जिसके उसने वचन प्रचार किया अपने देश, अपने लोगों को, लोगों ने उसे पत्थर में के मारा, लेकिन उसने मरते वक्त भी उसे कुछ नहीं रखना, मतलब वो गम को कठोरपना नहीं रखना था। उसने उस वक्त भी प्रार्थना की, यीशु इन लोग जो भी किए ना, इनका पाप को अब गिनती में मत रखो। और हम लोग भी एकदम आखिरी क्षण पे है, राइट। हम लोग यकीन करते कि हम लोग भी एकदम स्टेज पे भी हम लोग को वो चीज नहीं रखना है।
मे भी हमें गॉड का पवित्र गॉड का माइंड और उनके द्वारा हम इस जीवन में भी एक हमेशा वो प्रेम और वो क्षमा के